والصلاة والسلام على خير خلقه سيد الأولين والآخرين أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد المبعوث في آخر الزمان على كافة الإنس والجان المنعوت بكل الإسلام الناسخ لأحكام جميع الشرائع والهادي على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصلاة والسلام على أئمة الاثنى عشر من ذريته خير البشر لا سيما إمام المنتظر وصلى الله تعالى بولايته وتحت لوائه يوم المحشر ولعنة الله على أعدائهم وغاصبهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، سلسلہ دروس مولا علی اور ہماری زندگی نہج البلاغہ کی روشنی میں آپ کے سامنے صرف 2 ہی درس باقی رہ گئے ہیں اور آپ کی زحمت بہت ہی جلد اتمام ہونے والی ہے. کل جو موضوع یا ابتدا سے اب تک کا جو موضوع ہم نے فساد دنیا اور اس کا ازالہ کیوں کر ممکن ہے، ضمنی طور پر ان تمام باتوں آپ کے سامنے عرض کیا. مذہب کی پیروی کیوں ضروری ہے، ان عنوانات سے یہ بات بھی ظاہر ہو گئی. آج کا عنوان سیاست علوی یا سماجی اور معاشرتی کردار سازی انشاءاللہ آپ کے سامنے بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولانا امیر المومنین علی علیہ السلام کی کردار ساز شخصیت عالمی انسانیت کو فتنہ و فساد سے بچنے کی تعلیم و درس دیتی ہے. فتنہ و فساد کے وقوع پذیر ہونے کا نفسیاتی جائزہ لیتے ہوئے آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ بلا شبہ فتنہ و فساد کا وقوع خواہشات نفس اور خود ساختہ یعنی خلاف شرع احکام کی پیروی کے باعث ہوتا ہے، جن میں کتاب خدا کی مخالفت کی جاتی ہے یا دین خدا کے خلاف لوگوں کو انسانوں کا حاکم بنا دیتے ہیں. جیسا کہ ہم نے پہلے بھی اس امر کو واضح کیا ہے کہ شر فتنہ و فساد کا سرچشمہ ہے. اسلام جو بنیادی طور سے خیر ہے کسی بھی حالت میں فتنہ و فساد کی اجازت نہیں دیتا. حقیقت میں امن عامہ کے مفاد کے پیش نظر اپنے ذاتی مفاد کو ترجیح نہ دینا ہی اسلامی آئین کا بنیادی اصول ہے. نہج البلاغہ میں مولا نے جس قدر خطبات و ارشادات اور مختصر حکیمانہ کلمات میں اس تعلیم کا درس دے کر عالمی انسانیت کی رہنمائی کی ہے اور خود عملی طور پر انہیں اصول کے پابند بھی رہے ہیں. اگر ہم زندگانی مولا علی کا جائزہ لیں تو ہمیں اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ پیغمبر اسلام کی پیروی کرتے ہوئے اور حضرت کے نقش قدم پر تمام زندگی چلتے ہوئے مولا علی علیہ السلام نے بھی خالص روحانی سلطنت اسلامیہ کو قائم کرنے کی کامیاب کوشش کی. آپ کے طرز عمل، طریق جہاں بانی اور خالص اسلامی تعلیمات کو دیکھ کر ہر منصف مزاج بھی یہی کہتا ہے کہ آپ کا اقتدار زر و جواہر کا رہین منت اور سیاسی طریقہ کار کا ممنون احسان نہ تھا. اگرچہ دنیا کا ہر انسان عوامی حکومت کا دلدادہ تو ضرور ہے، لیکن عوامی حکومت کے اصل مفہوم کو سمجھنے سے قاصر ہے. اس بات سے ہم سبھی بخوبی واقف ہیں کہ دنیا کے طویل تاریخ میں
اب تک جہاں جہاں عوامی حکومت کے نام سے حکومتیں قائم ہوئی، عوام کو ان کے حقوق جو سربراہان مملکت سے ملنے چاہیے تھے ہرگز نہ ملے۔ ان سربراہان مملکت نے اگر ایک طرف عوام کے ساتھ عدل و مساوات کا سلوک کرنے سے چشم پوشی کی، تو دوسری طرف عوام کی محنت و مشقت کی دولت کو اپنی ذاتی دولت سمجھتے ہوئے اپنی چھوٹی شان شوکت، جاہ و جلال، عیش و عشرت اور نمائش، نام و نمور میں خرچ کر ڈالی۔ اور انہی اسباب کی بنا پر بعض سیاست دانوں نے اسلامی سیاست کا مذاق اڑایا، مگر جہاں تک اسلامی سیاست کی بات ہے، تاریخ اسلام کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ سیاست اپنے حقیقی معنی کے اعتبار سے لائق وقت اور قابل عظمت لفظ ہے۔ سیاست ایک انتظامی صلاحیت کا نام ہے جو بیدار فیاض کی طرف سے نوع انسان کی حفاظت کے لیے کسی انسان میں ودیت کی جاتی ہے۔ بس وہ عظیم المرتبت ہستی ہوتی ہے جو اپنی مخصوص بلند پایہ صلاحیت و قابلیت کی وجہ سے حیرت انگیز ترقی اور اصلاح معاشرہ کی ضامن ہوتی ہے۔ حقیقت تو یہی ہے کہ جس طرح بہت سی لفظیں اپنے حقیقی مفہوم کو کھو کر غلط اور بیجا استعمال کے باعث بے وقت ہو گئی ہیں، بے عین ہی لفظ سیاست بھی بے محل ہونے کے بدولت اپنے اصل مفہوم سے ہٹ گیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج اپنے مقصد کو حق و ناحق، جائز و ناجائز طریقے سے حاصل کرنا ہی سیاست کی اصل کمال تسلیم کی جاتی ہے۔ اسلام جو روحانیت کی تعلیم دیتا ہے، ہرگز قطعاً اس قسم کی سیاست کو پسند نہیں کرتا۔ مولا علی علیہ السلام نے عام انسانوں میں روحانیت کے جذبے کو بیدار کرتے ہوئے ریاکاری و بیجا طرفداری کے خلاف عزم و استقلال کے ساتھ اپنے 25 سالہ خاموشی کے راز کو یوں افشا فرمایا: یہ لوگوں، فتنوں کی موجوں کو نجات کی کشتیوں سے چیر کر بار ہو جاؤ، منافرت کی راہ چھوڑ دو اور مفاخرت و بزرگی کے تاج سر سے اتار کر زمین پر پھینک دو۔ مددگاروں کے ساتھ جو کسی کام کو اٹھاؤ وہ کامیاب ہے، اور بغیر یار و مددگار جس نے کاموں کو چھوڑا اور جھگڑے فساد سے بچا اس نے راحت پائی۔ یہ خلافت یعنی ذمہ داری تو ایک گندا پانی ہے، اور وہ لقمہ ہے جس کے کھانے والے کو اچھو ہو جاتا ہے، جان پر بنتی ہے۔ ہاں، کچے پھلوں کے بغیر پکے ہوئے چننے والے ویسے ہی ہیں جیسے کوئی دوسرے کی زمین پر کھیتی کرے۔ اس وقت اگر میں کچھ کہتا ہوں تو لوگ یہی کہیں گے کہ دیکھیے علی کو ملک اور دولت کی طمع ہوئی، اور اگر چپ رہتا ہوں تو ایسے بھی لوگ ہیں جو یہ کہیں گے کہ مرنے سے اور جان دینے سے ڈرتا ہوں۔ افسوس، مجھ سے خوف موت بہت دور ہے، کیونکہ میں ہر چھوٹی بڑی سبزی جیل چکا ہوں اور ہر معرکے کو طے کر چکا ہوں۔ جیسا کہ زمانہ آگاہ ہے، خدا کی قسم ابن ابی طالب موت کا اس سے زیادہ مانوس ہے اتنا ایک طفل شیخار پستان مادر سے۔ نہیں، یہ بات نہیں، بلکہ ایسے
मख्फी असरार और पोशीदा इल्म का मैं राजदार हूँ कि अगर उसे जाहिर कर दूँ तो तुम यूं कांप उठोगे जैसे गहरे कुओं में रस्सियां कांपती हैं और लरसती हैं। खुतबा नंबर 5। मज़कूरा खुतबे में अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम ने सुलह आशिकी और अमन सुकून की जिंदगी बसर करने के उसूल को चंद फिक्रों में पेश किया है। हकीकत भी यही है कि फितने उसी सूरत में दब सकते हैं जब उनको सब्र तहम्मुल और सुलह आशिकी के जरिए दबाया जाए, और सुलह आशिकी का रास्ता तभी मिलेगा जब आदमी मुखालिफत और मुखासिमत के रास्ते से दूर हो जाए। इसलिए कि जिद और हट धर्मी, नाज और गुरूर फितनों को बढ़ावा तो दे सकते हैं, दबा नहीं सकते। और आखिर तारीफ शायद है कि बाद वफात पैगम्बर इस्लाम सकीफा बनी साइदा में जिस वक्त अंसार और मुहाजिरीन ने अव्वल खलीफतुल मुस्लिमीन के हाथ पर बैअत कर ली तो अबू सुफियान हजरत अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब के पास आया और कहा कि खिलाफत तो कौल नबी के खिलाफ बनु हाशिम से निकलकर बनी तमीम में जा रही है। आइए हजरत अली अलैहिस्सलाम के पास चले और उनकी बैअत कर लें। चूंकि आप अम्मे रसूल हैं, नीस कुरैश आपकी बात मानते हैं, लिहाजा इस खिलाफत यानी अली के मुखालिफिन को हम कुचल देंगे और जो सर उठाएगा उसे कत्ल कर देंगे। वाज़ेह हो कि मौला अली के दिल में इस्लाम की मोहब्बत थी और मुसलमानों के लिए अमनियत और हमदर्दी, लिहाजा आप मुसलमानों में फितना और फसाद को किसी कीमत पर पसंद नहीं करते थे। नीस ये फितना और फसाद दीन इस्लाम के बुनियादी उसूलों के खिलाफ था और इससे इस्लाम के इस्तेहकाम और इत्तेहाद और विकार को ठेस पहुंचने के साथ साथ नुकसान पहुंचने का पूरा पूरा अंदेशा था। लिहाजा आपने अपने जाती मफाद को इस्लाम के मफाद और तकद्दुस के पेश नज़र गवारा न किया और इस मसले को टाल दिया। और जब अबू सुफियान ने कहा कि ये क्या गज़ब है कि कुरैश के सबसे छोटे कबीले में खिलाफत चली गई, तो खुदा अगर तुम चाहो तो मैं सवारों और प्यादों से की फौज से उस पर चढ़ दौड़ूं। मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये अबू सुफियान, तुमने हमेशा इस्लाम दुश्मनी का मुजाहरा किया, मगर इस तवील अरसे की इस्लाम दुश्मनी के बावजूद तुम इस्लाम का कुछ भी तो बिगाड़ नहीं सके। वाज़ेह हो कि मौला अली अलैहिस्सलाम के इरशाद ने आपकी वसअत क़ल्बी, आपकी आला ज़र्फ़ी, आपकी इस्लाम दोस्ती, आपकी मंजिलत व शराफत व मुरव्वत और आपकी अजमत किरदार नुमायां होती है। नीज़ ये भी साबित हो गया कि आप न तो मौका परस्त थे और न ताले आज़मा। और ये इरशाद इस बात की भी खम्माजी करता है कि वो एक ऐसा पुराशूब दौर था कि उसमें हुकूमत के खिलाफ कोई इक़दाम इस्लाम के लिए यकीनन नुकसान का बायस हो सकता था। लिहाजा एक तरफ सच्चे ऐसे अफराद भी थे जिन्हें हालात की नज़ाकत का एहसास नहीं था, बल्कि वो इस फिक्र में थे कि कोई मौका हाथ लगे और मुसलमानों को ज़र पहुंचाने और इस्लाम को कमजोर करने की साजिश अमल में लाए। मौला अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो मुहाफिज दीन इस्लाम थे और पैगम्बर इस्लाम के बाद इल्म व हिकमत और रुश्द व हिदायत की पूरी जिम्मेदारी आप पर आयद होती थी, इस वक्त यानी वफातुन नबी के फौरी बाद अगर आप उस गिरोह की पेशकश को तस्लीम कर लेते और तलवार उठा लेते
تو بظاہر آپ کے مخالفین کو شکست ہو جاتی، لیکن آپ کا یہ رد عمل رسول کے مطابق نہ ہوتا۔ نیز یہ حقیقی اسلام میں چنگیزیت صلاحیت کر جاتی، اور پھر وہ اسلام کا بالکل ابتدائی زمانہ تھا۔ بیشتر افراد کو نبوت محمدیہ ہی میں شک و شبہ پیدا ہو جاتا، جبکہ برائے نام ہی صحیح یہ کہا جاتا ہے کہ محمد تو اپنے خاندان کی حکومت قائم کرانا چاہتے تھے اور اسلام تو تلوار کے زور پر پھیلا ہے، جبکہ مولا امیر المومنین علی علیہ السلام، جن کو تاریخ اسلام اسد اللہ شیر خدا کے نام سے شناس کراتی ہے، آپ کی وہ ذوالفقار اگر اس وقت نیام سے باہر آ جاتی تو زمانے کو کہنے کا موقع مل جاتا کہ ہر شخص دعوے کے ساتھ یہی کہتا، ہر شخص دعوے کے ساتھ یہی کہتا کہ خلافت تلوار کے ذریعے ملتی ہے۔ اس طرح جو کوئی تلوار کا دھنی ہو، خلافت اس کا حق ہے۔ تلوار اٹھانے کا نتیجہ یہ ہوتا کہ مولا علی علیہ السلام ایک طرف اسلام کے دشمن کہلاتے تو دوسری طرف ظالم، اور اس طرح تاریخ اسلام، اخلاق حسنہ اور سیرت محمد والے محمد علیہ السلام کے بجائے تاریخ ظلم و تشدد ہو جاتی۔ گویا اسلام میں شام ہی شام ہوتی، کوسوں تک شہر کا نام نہ ہوتا۔ حضرت علی علیہ السلام کی دور رس نگاہوں خاموشی سے دیکھ رہی تھی۔ آپ نے انتہائی صبر و استقلال کا بے مثال تاریخی مظاہرہ کرتے ہوئے ایک طرف اسلام کو دو گروہوں میں تقسیم ہونے سے بچا لیا، تو دوسری طرف پیغمبر اسلام سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشہور و معروف حدیث مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح من رکبہا نجا ومن تخلف عنہا فغرقا ثابت کر دیا، یعنی میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح جیسی ہے۔ جو اس میں سوار ہو گیا یعنی ان سے وابستہ ہو گیا، اس نے نجات پائی۔ مختصر یہ کہ فتنوں و شر سے بچانے کے تعلیمی درس خطبات علی علیہ السلام میں جس انداز سے ہمارے سامنے ہیں اور کہیں دیکھنے کو نہیں ملتے۔ ظلم تشدد جیسے بدترین فعل سے مسلمانوں کو اپنا دامن بچائے رکھنے کی تاکید کی۔ دیکھیے خطبہ نمبر 174 میں آپ نے کیا خوب وضاحت فرمائی ہے۔ آگاہ ہو جاؤ، ظلم کی تین قسمیں ہیں۔ ایک ظالم جو بخشا نہ جائے گا، دوسرا ظلم جو ترک نہیں کیا جا سکتا، تیسرا وہ جو بخش دیا جائے اور بدلہ نہ لیا جائے گا۔ وہ ظلم جو بخشا نہیں جائے گا وہ اللہ کے ساتھ کسی کو اس کا شریک ٹھہرانا ہے، جیسا کہ خود خدا کا فرمان ہے، خدا اس کو نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے۔ اور وہ ظلم جسے بخش دیا جائے گا وہ ظلم ہے جو بندہ چھوٹے چھوٹے گناہوں کا مرتکب ہو کر اپنے نفس پر کرتا ہے، اور وہ ظلم جسے ترک نہ کیا جائے گا وہ ظلم ہے جو بندے ایک دوسرے پر ظلم و زیادتی کی شکل میں کرتے ہیں، جس کا کہ آخرت میں سخت بدلہ لیا جائے گا۔ وہ کوئی چھریوں سے کچوکے دینا یا کوڑوں سے مارنا نہیں ہے، بلکہ ایسا سخت عذاب ہے جس کے مقابلے میں یہ چیزیں بہت کم ہیں۔ بے شک قیامت کے دن بدترین سامان بندگان خدا پر ظلم ہے، اور وہ انصاف کا دن ظالم کے لیے مظلوم پر ستم والے دن سے زیادہ سخت ہے، کیونکہ ظلم کا نتیجہ انتہائی عبرتناک ہوگا۔ ظالم
कल जो खुद अपने हाथ की बोटियां काटेगा, जालिम खुद अपने हाथ की कल बोटियां काटेगा। और कुरान पाक में है कि यौमा यऊज़ु ज़ालिमु अला यदैहि, सूरह नंबर 25 आयत नंबर 27। मुख्तसर यह है कि जुल्म तशद्दुद और जबर और ज्यादती के खिलाफ हमेशा आवाज बुलंद की, और जब आप खुद मसरत खिलाफत पर बहसियत खलीफा बैठे तो अपने जुमला जिम्मेदारों को सख्त हिदायत की कि हरगिज़ हरगिज़ किसी को भी जुल्म का निशाना न बनाना। और यही इस्लाम का इंसानियत नवाज कानून है, और इन्हीं जुमला कवानीन और अहकाम पर हमें अमल करना चाहिए। और फिर यही कहना पड़ेगा कि चूंकि इस्लाम दीन हक है और हर फर्द बशर नीज हर मजहब व मिल्लत के जुमला अफराद और हर जमात को हक व इंसाफ की तराजू से तौलता है, यही वो वाहिद दीन है जिसका निज़ाम हुकूमत व जमहूरियत हक व इंसाफ और अदल मसावत पर कायम है। इस्लामी नुक्ते नज़र से हक वही है जो खुदा और रसूल खुदा की रज़ा के मुताबिक हो। और ये बात खास तौर से काबिल गौर है कि हक के सिलसिले में कसरत व किल्लत का इम्तियाज बेमाना है, इसलिए कि बातिल अपने साथ कैसी ही अददी अक्सरियत क्यों ना रखे बातिल ही रहेगा, और हक बहरहाल हक ही रहेगा, ख्वाह उसके अलमबरदार मादूद चंद अफराद ही क्यों ना हो। कहिए तो अर्ज कर दूं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अलियो माल हक वल हक माल अली। मौला अली ने मोहम्मद बिन अबी बकर को मिस्र का गवर्नर मुंतखब करते हुए जो फरमान जारी किया, उसमें अदल मसावत का जो दर्स दिया है, उसकी अहमियत आज के दौर में भी बहुत ज्यादा है। इरशाद फरमाते हैं, ए मोहम्मद, रियाया से इनकिसारी बरतना, उनसे नरमी का बर्ताव करना, कुशादा रूई से पेश आना और सबको एक नजर से देखना, ताकि बड़े लोग तुमसे अपनी नाहक तरफदारी की उम्मीद न रखें और छोटे लोग तुम्हारे अदल व इंसाफ से उन बड़ों के मुकाबले में नाउम्मीद न हो जाए। क्योंकि ए अल्लाह के बंदो, अल्लाह तुम्हारे छोटे बड़े ढके छुपे आमाल को बास पुरसी करेगा, और उसके बाद अगर वो अजाब करे तो ये तुम्हारे खुद जुल्म का नतीजा है, और अगर वो मुआफ कर दे तो वो उसके करम का तकाजा है। इसी तरह एक हाकिम को लिखा कि अगर हाकिम अपनी ख्वाहिशों पर चलने लगे तो बहुत सा इंसाफ उनसे रह जाएगा। तुम्हें ऐसा होना चाहिए कि हक में सब लोग तुम्हारे बराबर हों, ना इंसाफी में इंसाफ का कोई एवज नहीं हो सकता। तुम उन सब बातों से परहेज करो जो तुम्हें दूसरों में बुरी मालूम हो, और खुदा ने जो कुछ तुम पर फर्ज किया है हत्तल मकदूर से अंजाम देते रहो, सवाब की उम्मीद रखो और अजाब से डरते रहो। याद रखो, दुनिया आजमाइश की जगह है। एक घड़ी के लिए भी दुनिया के न हो जाना। कयामत के दिन इस घड़ी को हसरत की न बना लेना। कोई चीज भी तुम्हें हक से बेनियाज नहीं कर सकती, और यह हक तुम पर वाजिब है कि अपनी हिफाजत करो, जहां तक हो सके रियाया पर एहतिसाब रखो। यकीन करो, इससे रियाया को जितना नफा पहुंचेगा उससे कहीं ज्यादा तुम्हें फायदा पहुंचेगा। खुतबा नंबर 59 बस ये बात साबित शुदा है कि अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम ने हमेशा अपने दुश्मन और मुखालिफिन के साथ भी अपने दोस्तों, रफीकों और जानिसारों जैसा सलूक किया, और हमेशा अदल मसावात में हक पसंदी को कभी हासिल न जाने दिया। आपने आम इंसानों के साथ बैतुल माल को अल्लाह की अमानत करार दिया।
आम इंसानों में रूहानियत के जज्बे को बेदार करते हुए रियाकारी और बेजा तरफदारी के खिलाफ अज़्म व इस्तक़लाल के साथ बैतुल माल को अल्लाह की अमानत करार दिया और फिर अल्लाह की इस अमानत को उसके मुस्तहिक़ीन में तक़सीम करना अपना फरीज़ा समझा। अलावा बरी अमानत में खयानत को आपने बदतरीन फेल करार दिया। इस इस्लामी तालीमात के भी बेहतरीन नमूने हमें नहजुल बलागा में जा बजा मिलती है। चुनांचे आपने अपने दौर खिलाफत में ज़कात के एक हाकिम को अहकाम जारी करते हुए लिखा, याद रखो जो कोई अमानत में गफलत से काम लेता है और खयानत के मैदान में चढ़ता फिरता है और अपने नफ्स और दीन को इस गंदगी से पाक नहीं करता या पाक नहीं रखता, वो इस दुनिया में भी अपने ऊपर बलाएं नाजिल कराता है और आखिरत में वो सबसे ज्यादा गुम कर दे राह और रूसिया होगा। सबसे बड़ी खयानत उम्मत की खयानत है और सबसे बड़ी दगाबाजी इमाम से दगाबाजी है। खुतबा नंबर 26 वाज़ेह रहे कि इस्लाम इस तरह नुखुवत तकब्बुर, बुग़्ज़ व हसद, हिर्स व हविस, जुल्म व तशद्दुद के साथ गुस्सा और रियाकारी वगैरह जैसी बुराइयों से भी बचने की तालीम देता है और आज के मुतमद्दिन इंसान ने इन ऐबों को जिंदगी का अहम जुज़ बना लिया है। मोमिन अली अलैहिस्सलाम की जिंदगी जुमला उयूब से महफूज आलम इंसानियत के लिए एक बेमिसाल नमूना है। आपने इनकिसारी को इंसान का काबिल एतमाद सरमाया करार दिया। फरमाते हैं फख्र व सरबुलंदी को छोड़ो, गुरूर व तकब्बुर को मिटाओ और कब्र को याद रखो। आपने इब्लीस के नखवत व तकब्बुर की सख्त मजम्मत की और बताया कि यही वो फर्द अव्वल है जिसे हजरत आदम अलैहिस्सलाम सिफ़तुल्लाह के आगे सर व सुजूद न होने के साथ असबियत का मुलाहिदा किया और गुरूर और नखवत व तकब्बुर का रास्ता इख्तियार किया। ये दुश्मन खुदा असबियत बरतने वालों का सरगना और सरकशों का पेशरो है। इसने असबियत को बुनियाद रखी, उसने अल्लाह की रिदाए अज़मत व किबरियाई को छीनने का तसव्वुर किया, तकब्बुर व सरकशी का जामा पहन लिया और इज्ज़ व फुरूतनी की नकाब उतार डाली। तो क्या तुमने नहीं देखा कि खुदा ने शैतान को उसके तकब्बुर के बदले किस तरह रुसवा किया और उसकी सरबुलंदी को क्या गिराया, कैसा गिराया कि दुनिया में उसे रांदे दरगाह यानी मुर्दा बना दिया और आखिरत में उसके लिए भड़कती हुई आग मुहैया कर दी। बस तुम्हें चाहिए कि अल्लाह ने शैतान के साथ जो कुछ किया उससे इबरत हासिल करो कि उसके तूल व तवील इबादतों और भरपूर कोशिशों पर एक घड़ी के तकब्बुर से पानी फिर गया। मालिक एस्टर को मुखातिब करते हुए फरमाया कि अगर हुकूमत की वजह से तुम में गुरूर पैदा होने लगे तो सबसे बड़े बादशाह यानी खुदा की तरफ देखना जो तुम्हारे ऊपर है और तुम पर वो कुदरत रखता है। सबसे बड़े बादशाह खुदा की तरफ देखना जो तुम्हारे ऊपर है और तुम पर वो कुदरत रखता है जो तुम भी अपने आप नहीं रखते। ऐसा करोगे तो नफ्स की नफ्सियाती कम हो जाएगी, हिद्दत घट जाएगी और भटकी हुई तुम्हारी रूह वापस आ जाएगी। आपके ये तमाम खुतबात, फरामीन, मुरासिलात जो आपने अपने उम्माल को रवाना किए थे, इन्हें देखने से पता चलता है कि आपने इनमें जहां बानी के छोटे से छोटे और बड़े से बड़े जुज़ियात को पेश नजर रखते हुए उनके तरीके अमल को इंतहाई दुरून बीनी से नुक्ताचीनी की
अब हमें आपको ये इतराफ़ करना पड़ेगा कि यकीनन हमारे मौला अली अलैहिस्सलाम एक माहिर सियासतदां थे, और आपके मुकम्मल फरमान को अगर इस्लामी दस्तूर अमल कहा जाए तो बेजा न होगा। आपने अपने आप को हमेशा इंसानियत का सच्चा खातिम और अवाम का खिदमत गुजार समझा। अगर एक तरफ मसनद खिलाफत और तख्त हुकूमत है तो दूसरी तरफ ऐसी फ़कीराना ज़िंदगी जिसमें फ़राइज़ हुकूमत की अदायगी के बाद तारीकी शब में गुरबा मसाकीन को रिस्क पहुँचाना आपकी ज़िंदगी का नस्बुल ऐन था। आपने हमेशा बैतुल माल को अल्लाह की अमानत समझा और माल और दौलत को फ़क्र फाक़े में ज़िंदगी बसर करने वाले मफलूकुल हाल अल्लाह के बंदों का हक समझते हुए हमेशा गरीबों, मिस्कीनों, बेवाओं, यतीमों की दस्तगीरी करते रहे। आपने हुकूमत को सरमाया दाराना रवैया से हटाया, बैतुल माल को इस्लामी मुजाहिदीन का हक समझा, आका और गुलाम के फ़र्क को ख़त्म किया, समाज के कमज़ोर तबके को आगे बढ़ाया, गरीबों, मजदूरों की फलाह व बहबूदी के लिए ऐसे इक़दाम किए और हुक्काम को ऐसे अहकाम जारी किए जिससे उनकी बेहतरी और तरक्की हो। मुख्तसर ये कि इस किस्म के और भी बहुत से खुतूत अपने अहद के अफसरान को लिखे और लिखकर इस्लामी क़वानीन ऐसी मिसाल हमारे सामने पेश की जिससे तारीख कभी फरामोश नहीं कर सकती। और ये कहना गलत न होगा कि आज उसकी अहमियत पहले से भी कहीं ज़्यादा हो गई है। ये है वो कि जिसने फ़कीर शाही में भी फ़कीरी की। ये है वो बुज़ुर्ग आलिम और बुज़ुर्ग फातिह और बुज़ुर्ग खलीफा कि जिसके लिए कहा जाता है कि उसने शाही में भी फ़कीरी की। दरअसल अपने को खुदा का बंदा समझते थे और इसी तरह अपनी सादगी ज़िंदगी को खुदा के सामने सरशार और खुशरो बना करके दुनिया से हमारे सामने पर्दा कर दिए। हम सभी इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं कि इंसान बहैसियत एक मखलूक अपने हर अमल के अच्छे और बुरे नतीजे से नावाकिफ़ है। उसके नज़रियात में तगय्युर व तबद्दुल होता रहता है। वो कभी शक व शुबा में मुब्तला हो जाता है और कभी डर और खौफ उस पर तारी हो जाता है। उसे अपने हर काम में नफ़ा व नुकसान का डर लगा रहता है। अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम ने नफ्स परस्ती से बचने के साथ ही इस्लाह नफ्स और अमल सालेह की इस्लामी तालीमात के दर्स देकर हमारी रहनुमाई का अहम फरीज़ा अंजाम दिया। इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह के बंदो, अपने जहल व नादानी पर एतमाद न करो और न ख्वाहिशात नफ्स के ताबे हो जाओ। तुम्हें चाहिए कि इल्म की तरफ बढ़ो कबल इसके कि उसका हरा भरा सब्जा खुश्क हो जाए, और कबल इसके कि अहले इल्म से इल्म सीखने में अपने ही नफ्स की मसरूफियतें हायल हो जाए। दूसरों को बुराइयों से रोको और खुद भी रुके रहो, इसलिए कि तुम्हें बुराइयों से बचने का हुक्म पहले है और दूसरों को रोकने का बाद में है। खुतबा नंबर 104। अमल सालेह का हुक्म देते हुए और ख्वाब गफलत से बेदार करते हुए इरशाद फरमाते हैं, नशे से चौंको, गफलत से बेदार हो जाओ और अपने उजलत दुनिया में इख्तियार करो और उन सच्ची बातों पर गौर करो जो ज़बान रिसालत पर जारी हुई है, जिनका कबूल करना लाजिम है और उन्हें कबूल किए बगैर कोई चारे कार नहीं। जो इन बातों की मुखालफत करे तुम उसके मुखालिफ हो जाओ, उसे और उसके इख्तियार किए हुए रास्ते को छोड़ दो, अपने फख्र को छोड़ दो, अपने किब्र को नाचीज समझो और अपने मरतब को याद करो। बिला शुबा वो तुम्हारी गुज़रगाह है, जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।